we are starting with chapter number 4, Psychology, class 12, and the name of the chapter is Psychological Disorder, and you have to refer page number 70 NCERT for this chapter. Alright, so I am going to explain from NCERT book only because CBSE exam is going to be conducted from NCERT book. So you can open that page, and when I read, I'll explain, so you can do it side by side. Alright, so let's begin. What are we going to study in this particular chapter? As the name itself suggests, we are going to talk about psychological disorders. Now when I say psychological disorders, disorder I mean things which are not in order, right? They are not normal. So we are going to discuss all the abnormalities related to psychological problems, or you can say brain or cognitive absence, cognitive disturbance, or maybe imbalance. तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ बात करेंगे, और कितने टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या हैं, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं. It's a very interesting chapter. If anyone has the goal to become psychologist in future, उनको तो इसके बारे में पता होना चाहिए. Alright, so let's begin. Although many definitions of abnormalities have been used over the years, none has won universal acceptance. Still, most definitions have certain common features, often called 4Ds. Alright, so it's written 4Ds. Now when I say 4Ds, we mean what? One is deviance, things which are not in track, deviated. So deviance होना ज़रूरी है. Then distress. This, I think the name itself clears that stress word is there. Okay, so we will clarify this one by one. Dysfunction. कभी-कभी brain का normal, everything is related to some deviation or dysfunction, and it is danger. So you have to remember all 4 Ds to understand this topic. So that is psychological disorders are deviant. Now when I say deviant, what does this mean? It's different. Deviant मतलब बाकी लोगों से अलग, deviated है, right? This different, extreme. Maybe अलग क्यों है? क्योंकि वो बहुत extreme. एक तो होता है मुझे गुस्सा आता है, और होता है मुझे extreme का गुस्सा आता है, यानी I can kill a person that time. तो ये तो normal behavior नहीं हुआ ना. So it is different but extreme. Unusual, even bizarre. So these are the terms which are given to deviation. Distressing क्या है? Distressing means always under stress, unpleasantness. मतलब contentment है नहीं, happiness नहीं, और always under some anxiety or pressure. That's called distress. Unsettling to the person, unpleasant and unsettling to the person and to others. अपने आप के लिए तो harmful है ही, दूसरों के लिए भी वो same situation में है. Dysfunctional. Dysfunctional मतलब interfering with the person's ability to carry out daily activities in a constructive way. Dysfunctional. Normally I function throughout the day. I do some work, I do household chores, I do office work, अपना personal work, ये सब normal करते हैं. लेकिन what is happening here is dysfunctional. इसमें क्या हो रहा है? अपनी ability तक मैं नहीं कर पा रही हूँ, because maybe I am under stress, मेरा body ache, or maybe I am feeling low because of that. So there may be different reasons for that. ठीक है? Constructive way से काम नहीं कर पा रहे. And possibly dangerous. Of course it is dangerous. Things which are not normal, they cannot be called, they are not dangerous. So it is to the person and to the others. तो ऐसे लोग अपने लिए तो डेंजर होते ही हैं, दूसरों के लिए भी डेंजरस हो जाते हैं. This definition is useful starting point from which we can explore psychological abnormality. जानने के लिए शुरू में ये 4 Ds को जानना is very important. अगर कहीं आपको इन चारों Ds में से कोई एक या 2 भी किसी में दिखती है, so you can understand there is some psychological disorder. Explore psychological abnormality. Since the word abnormal literally means away from the normal, so you must underline, this can come in 1 marks. Abnormal means जो normal नहीं है,
which is away from normal situation. All right. It implies deviation from some clearly defined norms or standards. In psychology, we have no ideal model or even normal model of human behavior to use as a base for comparison. मतलब हम साइकोलॉजी में ऐसा नहीं करते कि उसको देखो, आप देखो कितना नॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि हम जानते हैं देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम तो पढ़ते हैं. सो हम एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज ए स्टूडेंट और टीचर ऑफ साइकोलॉजी जानते हैं, और हम ऐसे नहीं कहते यू मस्ट बिहेव लाइक दैट पर्सन बिकॉज ही इज द आइडल पर्सन. वी कैन नॉट से दैट, क्योंकि आइडल कोई होता ही नहीं. हर एक का बिहेवियर अगर वो नॉर्मल है, मेरा बिहेवियर आपके बिहेवियर से अलग ही होगा, राइट. बट वी कांट से मेरा बिहेवियर तुम्हारे बिहेवियर से डेविएट है इसलिए मैं एबनॉर्मल हूँ या आप एबनॉर्मल है, नहीं कह सकते. हर एक के बिहेवियर को वॉच किया जाता है, बट एबनॉर्मल नॉर्मल को किससे, किसी पर्सन से नहीं कंपेयर किया जा सकता. राइट. मे बी कंपेरिजन हो सकता है सिचुएशन से और एक जनरल बिहेवियर से, लेकिन हम पर्सन को नहीं कंपेयर कर सकते. देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. No ideal behavior in psychology. Various approaches have been used in distinguishing between normal and abnormal behaviors. From these approaches, there emerges two basic and conflicting views. कौन से? Let's understand. यहाँ पर आपको दो अप्रोचेस की बात चल रही है. ओके, यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है आप नोट कर लीजिए, फिर ये आंसर बना दीजिएगा अपने नोट्स में, नोटबुक में. जब आप नोट्स बनाएं तो यू कैन राइट डाउन दिस क्वेश्चन. डिस्कस वेरियस अप्रोचेस दैट एक्सप्लेन्स एबनॉर्मैलिटी. डिस्कस वेरियस अप्रोचेस दैट एक्सप्लेन एबनॉर्मैलिटी. राइट. So you can start with this approach. First approach is what? तो heading बनाएंगे first approach. Views abnormal behavior as a deviation from social norm. Social norm से हटकर अगर कुछ कर रहे हैं, social norm है कि हमें किसी और की चीज को नहीं लेना चाहिए. That is called, what is it called? You're stealing the money or the item which is socially not acceptable. आपके पास जो है उसी से ही contented रहिए, और अर्न पाना चाहते हैं तो अर्न कीजिए, हार्डवर्क कीजिए. ऐसे किसी से छीनना सोशली अलाउड नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कहता है. तो अगर कोई ऐसा ही करता जाता है इन स्पाइट ऑफ नोइंग दिस, तो हम कहते हैं वो डेविएटेड बिहेवियर में है. Deviation from social norms. Many psychologists have stated that abnormal is simply a label that is given to a behavior which is deviant from social expectations. Abnormal behavior, यहाँ से आप नोट करेंगे नोट्स में, अंडरलाइन कर लीजिए. एबनॉर्मल बिहेवियर या तो एबनॉर्मल, ये थॉट्स डिस्ट्रैक्टेड आना, अजीब अजीब से थॉट्स आना, एबनॉर्मल थॉट्स आना. हम नॉर्मली रोड पर चल रहे हैं और आराम से ऐसे निकल जाते हैं. अगर किसी को ये थॉट्स आते हैं, बिकॉज आई मीट पीपल, आई डू काउंसिल देम ऑल्सो, सो आई नो. देयर वॉज अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू से, जब मैं स्कूटर चलाता हूँ तो मुझे दिल करता है जो लोग पैदल चल रहे हैं उनके पैरों में मारूं. ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है. शरारत के लिए समझ में आता है, लेकिन हर बार यू फील लाइक आई यूज्ड टू हिट आल्सो, सो दिस इज नॉट कॉल्ड नॉर्मल बिहेवियर. सो डेविएशन हो गई थॉट्स में ही, पहले तो थॉट में ही गड़बड़ हो गई. एंड देन इमोशंस. ओके, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम वीकनेस फील करना, वीक फील करना, लो फील करना, सप्रेस फील करना, एक्सट्रीम में. नॉर्मली इट्स ओके, बोथ द एक्सट्रीम्स आर नॉट गुड. ऑलराइट, बिल्कुल लो एंड बिल्कुल हाई. सी क्या क्या चीजें, एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, एबनॉर्मल थॉट्स हो सकते हैं, एंड एबनॉर्मल इमोशंस हो सकते हैं. आर दोज दैट डिफर मार्केडली फ्रॉम अ सोसाइटीज आइडिया ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग. हर एक सोसाइटी का एक प्रॉपर फंक्शनिंग का आइडिया होता है, उससे अगर बियॉन्ड आइडिया आ रहा है सो इट्स नॉट गुड. अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें, वहाँ के 13 और 15 साल के बच्चे को आइडिया आ रहा है कि आई शुड लिव अवे फ्रॉम माई पेरेंट्स, I should not stay here, maybe 15-16 में, so that's normal. But if the same idea comes in India, in Indian culture, Asian culture, it's not allowed. So हम कहते हैं ये deviated है. So society के norms के हिसाब से हम behavior को देखते हैं. Alright, चलिए आगे. Good, I'm sure you're able to understand. Let's move further. Each society has norms. Norms क्या होते हैं? जो कहीं लिखे नहीं होते, ठीक है.
तो लेकिन वो अनसेड रूल्स होते हैं, ऐसे कह लो अनरिटन रूल्स, बट एवरीबडी इज अवेयर ऑफ इट, ठीक। सो एवरी सोसाइटी हैज सर्टेन नॉर्म्स। नॉर्म्स कैसे हैं, किनको हम कह सकते हैं, नॉर्म्स आर सर्टेन रूल्स विच वी आर सपोज टू फॉलो। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में कहते हैं वी शुड बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, हमें उन्हें विश करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, ये लिखा है क्या कहीं? नहीं, बट इट इज लाइक इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड फ्रॉम योर एल्डर्स यू हैव टू बाउ डाउन, राइट। सो हमारे घर में कोई आए उसको ग्रीट करना चाहिए, उसका वेलकम अच्छे से होना चाहिए, क्यों कहीं लिखा है? नहीं। वेस्टर्न कल्चर में तो वो बोल देते हैं जी आपको फोन करके आना चाहिए था, ये आप कैसे आ गए ऐसे बिना बताए, तो उनके वहाँ का वो नॉर्म है, लेकिन हमारे यहाँ का नॉर्म है, हमारे घर में कोई भी आ गया हम उसे प्यार से वेलकम करते हैं, हम उन्हें ग्रीट करते हैं, हम उन्हें कुछ ऑफर करते हैं, टाइम देते हैं अपना, right? So these are certain norms, all right? So each society has norms which are stated or unstated rules for proper conduct. Behaviors, thoughts, emotions that break societal norms are called abnormal. ठीक है? A society's norms grow from its particular culture. कहाँ से आते हैं? हमारी हिस्ट्री से। हमने सुना, हमने रामायण में देखा रामचंद्र जी कितने ऑनेस्ट थे, पेशेंट थे, मैनर्ड थे, मतलब हमने उनकी स्टोरीज को सुना और हमारे भी कल्चर में वो आना शुरू हुआ। हमारे बच्चे वी आर नॉट सपोज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ आवर एल्डर्स ना, हमें उनकी एडवाइस को सुनना होता है, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते, डिस्कस कर सकते हैं। ये सब बातें हमने कहाँ से सीखी? अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से, अपनी वैल्यूज, अपने इंस्टीट्यूशंस, हमारी देयर आर मेनी थिंग्स, हैबिट्स, स्किल, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ों ने हमें हमारी हैबिट्स को बनाया। Thus, a society whose culture values competition and assertiveness may accept aggressive behavior, whereas किसी कल्चर में हो सकती हैं, एक्सेप्ट होती हूँ, लेकिन one that emphasizes cooperation and family values, such as in India, may consider aggressive behavior as unacceptable. हम उसे abnormality कहेंगे। अगर कोई बच्चा घर में बड़ों के सामने चिल्लाता है, बोलता है, I have heard हाथ भी उठाते हैं, so हम इसे uncultured कहते हैं, not accepted behavior कहते हैं, all right? Foreign में children are they indulge into arguments with their parents, but हमारे यहाँ नहीं होता, argument नहीं होता, discussion हो सकता है। There is a difference between both, right? So बहस करना is not allowed and we don't do it even. हमारी values ही ऐसी नहीं है, हमें तो brought up ही इसी तरह से किया गया है, okay? So let's move further, right? A society value may change over time. अब हो गया, बहुत हद तक बदल गया। पहले हमारे टाइम पर भी हम अपने पेरेंट्स के सामने ज़्यादा नहीं बोल सकते थे, स्टिल थोड़ा। मेरे फादर के टाइम पर तो बिल्कुल नहीं, उनके फादर के टाइम पर तो और भी नहीं, है ना? सो टाइम इज चेंज्ड, सोसाइटी की वैल्यूज चेंज, causing its view of what is psychologically abnormal to change as well. तो हमारे बुजुर्ग हमें देखकर ना बहुत बार सरप्राइज होते हैं, यार ये क्या है, व्हाट इज दिस, है ना? हम तो ऐसे नहीं करते थे। दे गेट सरप्राइज, व्हाई? बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू डू दैट। बट हमारे जैसे इट्स लाइक गर्ल्स को बाहर नहीं भेजा जाता था एजुकेशन के लिए। इफ आई टॉक अबाउट माई ग्रैंड मदर्स टाइम और मे बी आई कैन से माई मदर्स टाइम, नहीं भेजा जाता था, वहीं आसपास जो स्कूल कॉलेज है वहीं पढ़ लीजिए। लेकिन नाउ द टाइम इज चेंज्ड, गर्ल्स आर नॉट ओनली गोइंग टू द अदर स्टेट्स, दे आर मूविंग टू द अदर कंट्रीज फॉर फर्दर स्टडीज। सो व्हाट डज दिस मीन? टाइम के हिसाब से भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं। अब वो एबनॉर्मल नहीं है। इफ माय डॉटर वाज अब्रॉड टू स्टडी, इट्स नॉट एबनॉर्मल, वी कांट से इट्स अ डेविएंट बिहेवियर, नो, इट्स द टाइम ऑफ द डिमांड ऑफ द टाइम, राइट? So आगे चलते हैं। Serious questions have been raised about the definition. It is based on the assumption that socially accepted behavior is not abnormal and that normality is nothing more than conformity. इसका मतलब normality कैसे होती है? Social norms अगर उसे कहीं ओके है तो भैया वो नॉर्मल है, social norms कहे नहीं ओके तो बोला abnormal है, ठीक है? The second approach, alright, is views abnormal behavior is maladaptive. मतलब many psychologists believe that the best criteria for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but underline, whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which he or she belongs. मतलब
सोसाइटी तो एक्सेप्ट करती है, लेकिन क्या वो इवेंचुअली उनके वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है या नहीं, ये भी देखना होता है। ओके, वेलबींग से क्या मतलब? वेलबींग इज नॉट, बच्चों जो भी बोल्ड वर्ड्स हैं इन्हें तो आपको मीनिंग्स को बाय हार्ट होने चाहिए। वेलबींग, हम कहते हैं मेरी वेलबींग क्या होती है, हाउ टू डिफाइन, पता है, लिखना कैसे है? सुनिए, इट्स नॉट सिंपली मेंटेनेंस ऑफ वेलबींग इज माय हाउस, माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी कुछ लोग कह देते हैं। इट्स नॉट सिंपली मेंटेनेंस इन सर्वाइवल बट ऑल्सो इंक्लूड्स अंडरलाइन ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। ओके, मेरी वेलबींग का मतलब कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितने परसेंटेज से मेरी ग्रोथ हुई, कितनी फास्ट, कितनी स्लो, और उससे मेरी फुलफिलमेंट क्या होता है, मेरी हैप्पीनेस, एम आई सेटिस्फाइड विद दैट ग्रोथ और नॉट। सो ये भी मेरी वेलबींग। बहुत सारे लोग थोड़े में ही बहुत खुश होते हैं, आई वुड से देयर वेलबींग इज ओके। बहुत सारे लोग इतना कुछ होते हुए भी दे आर नॉट हैप्पी। सो ग्रोथ हुई लेकिन फुलफिलमेंट वहां नहीं थी, सो इट्स नॉट देयर वेलबींग। दैट इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। मैंने अपने पोटेंशियल तक काम किया कि नहीं किया, मेरा पोटेंशियल यहाँ तक है और मैं दुखी हो रही हूँ कि मैं यहाँ क्यों नहीं पहुंची, सो ये तो मेरा वेलबींग नहीं हुआ ना। अपने पोटेंशियल तक, एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल व्हिच यू मस्ट हैव स्टडीड इन मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, पिरामिड याद है? Theory, according to this criteria, conforming behavior can be seen as abnormal if it is maladaptive, right? It is not adapted by other people. That is, if it is interferes with optimal functioning and growth. For example, examples को याद रखेंगे. A student prefer to remain silent even when he or she has question in his or her mind. Describing behavior as maladaptive implies that a problem exists. It also suggests that vulnerability in the individual, inability to cope, exceptional stress in the environment has led to problem in life. मतलब क्वेश्चन है लेकिन वो पूछ ही नहीं रहा, क्यों नहीं पूछ रहा? So it is not adaptive behavior. Why? इसका मतलब कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम. It could be anything. हम इसे इंट्रोवर्ट के नाम से भी बोल सकते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स भी अपने क्वेश्चंस को किसी ना किसी वे से एक्सप्रेस कर देते हैं. सो यहाँ इसने बोला कि अगर उसको ये लग रहा है, इंट्रोवर्ट में भी उसको फीलिंग पता है क्या आती है? इंट्रोवर्ट फीलिंग क्या है? लो फीलिंग, वल्नरेबल. आई एम अ मिसफिट इन द क्लास. एवरीबडी इज सो एक्टिव, कॉन्फिडेंट, प्राउड एंड दे स्पीक लाइक दिस, आई कैन नॉट. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? मेरा नॉर्मैलिटी से मैं नॉर्मैलिटी में एंटर हो रही हूँ. सो एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर आप कल को बनते हैं, आई रियली विश आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी इश्यूज हैं, इंट्रोवर्ट को भी इट्स ओके. वी डोंट से इंट्रोवर्ट नीड्स टू बी एक्सट्रोवर्ट सडनली. व्हाई? दैट इज हिज ओन कैरेक्टरिस्टिक, इट्स परफेक्टली फाइन. बट उसकी वजह से गिल्ट डेवलप होना, उसकी वजह से लेस कॉन्फिडेंस डेवलप होना कैन लीड टू अ प्रॉब्लम. इफ यू टॉक टू पीपल अराउंड, you will see that they have vague ideas about psychological disorders. All right, so they have vague ideas about this that are characterized by superstition. मतलब हम अगर किसी का abnormal behavior देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वो ये पागल है, इसके ऊपर भूत आ गया है. ये अभी भी है जी, superstition में आ गए. ignorance, हम मानते ही नहीं, पहले तो accept ही नहीं करते problems को. अगर accept कर ले तो I think half of the problem is sorted out. And fear, डर जाना उस बिहेवियर से, ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है. अगेन इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. लोगों को लगता है अगर मुझे या मेरे बच्चे को या मेरे हस्बैंड को या वाइफ को या फैमिली में किसी को भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है विच इज डिविएंट, जैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी है, देयर आर मेनी, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, बहुत सारे सिजोफ्रेनिया है, डिल्यूजन्स है. सो इसका मतलब ये कुछ गलत हो रहा है, हम डर जाते हैं, है ना. सोसाइटी में मेरा क्या नाम रहेगा? ये तो पागलपन है. हर एक प्रॉब्लम पागलपन नहीं होती, राइट? चलिए, अगेन इट इज कॉमनली बिलीव्ड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इज समटाइम्स इज टू बी अशेम्ड ऑफ. हमें उस पर अशेम्ड ऑफ वी फील. And the stigma attached to mental illness, underline, the stigma attached to mental illness means that people are hesitant to consult the doctor, and this is very prominent in India. We do not consult a psychologist. और फॉरेन में लोग जैसे अपनी फिजिकल हेल्थ चेक कराते हैं, ऐसे ही टाइम टू टाइम वो अपनी मेंटल हेल्थ भी चेक कराते हैं. यहाँ अगर कोई बोल दे कि हम जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, बस फिर तो पूरा मोहल्ला उन्हें एकदम से साइड कर देगा और बोलेगा इनके घर में तो ये पागल है. So that's the
system, stigma attached to this, because they are ashamed of their problems. Then, actually psychological disorder which indicates a failure in adaptation should be viewed as any other illness. जैसे बुखार है, बाजू में दर्द है, पेट दर्द है, ऐसे ही हमें रखना चाहिए कि मेंटली मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं अंडर स्ट्रेस हूँ, मैं अभी लो फील कर रहे हैं, अभी ये प्रॉब्लम हो रही है और मेरे साथ ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, मुझे जैसे बोलते हैं वहम की बीमारी हो गई है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, आई शुड गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. देन ओके, सो अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, आपको एक लिखिए क्वेश्चन 1 मार्क के लिए भी आ सकता है. व्हाई डू पीपल हेजिटेट, व्हाई डू पीपल हेजिटेट टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट? बिकॉज द स्टिग्मा इज अटैच्ड टू इट. ओके, राइट. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आते हैं बच्चा. To understand psychological disorder, we would require a brief historical account of how these disorders have been viewed over the ages. When we study the history of abnormal psychology, we find that certain theories have occurred over and over again. One ancient theory that is still encountered today holds that abnormal behavior can be explained by the operation of supernatural, मैंने बोला भूत आ गया जी, and magical forces such as evil spirit, bhoot pret, or the devil, shaitan. Exorcism means removing the evil that resides in the individual through counter magic and prayer. फिर वो झाड़ फूंक कराई जाती है उसकी. is still commonly used in India. बहुत सारों ने तो कोरोना वायरस का भी झाड़ फूंक शुरू कर दिया था. Thanks to the government उनको होल्ड कर दिया गया, भाई ये क्या शुरू कर दिया. So यहाँ इस तरह से चलता है. आपको पेपर में आ सकता है what is exorcism, or explain how magical forces are responsible for abnormality. In many societies the shaman होते हैं या ओझास कहते हैं, वो जो झाड़ फूंक करते हैं, is a person who is believed to have contact with, वो भैया वो उसकी supernatural power से contact होता है, और he is a medium, he is the medium between the spirit and the person who is facing the problem. आपने बहुत बार मूवीज में भी देखा होगा, भूत आ गया तो एक वो बाबा जी पहन के आते हैं ऐसे काला काला तिलक लगा के और ये इस तरह से झाड़ फूंक करते हैं. सो दे आर दी मिडल मैन, बीच में आ जाते हैं जी, शमन्स होते हैं. थ्रू द शमन एन अफेक्टेड पर्सन कैन लर्न which spirit are responsible for his or her problems and what needs to be done to appease them. Did you get that? This is the historical background, so which we've just gone through, right? आगे चलते हैं. A recurring theme in the history, उसके बाद एक और आ गया, of abnormal psychology is the belief that individuals behave strangely because their bodies and their brains are not working properly. ये थोड़ी लॉजिकल अप्रोच है, इसे हम ऑर्गेनिक अप्रोच भी कहते हैं. साइड में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. दिस इज मॉडर्न एरा. इनको लगा ये भूत प्रेतों की वजह से नहीं, ये फिजिकल या मेंटल डिसबैलेंस या डिफॉर्मिटी की वजह से होता है. So, it is linked to many maladaptive behavior for certain types of disorders. Correcting these defective biological processes results in improved functioning. All right. Then moving further, another approach is the psychological approach. According to this point of view, psychological problems are caused by inadequacies, जो इतना होना चाहिए उतना नहीं, in the way an individual thinks, सोचने में, फील करने में, इमोशनल हो गया, सोचने में कॉग्निटिव हो गया, and perceive, अंडरस्टैंडिंग में भी related to bring the world. तो उस वजह से भी हमें नॉर्मैलिटी हो सकती है. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. 72 वाला पेज जो है उसमें all 3 perspectives we are going to study in the next video. Keep watching. Bye. Take care.